तो आज हम 2021 का 2021 का स्टैटिस्टिकल साइंस का जेआरएफ का पेपर सॉल्व करेंगे कंप्लीट डिटेल्स के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है स्टैटिस्टिकल साइंस का। तो 120 का 120 नंबर क्वेश्चन है एंड टोटल मार्क्स इज 480। पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि नेफेड नेफेड वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। पहले नेफेड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेफेड का फुल फॉर्म है नेफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड दिस इज एस्टेब्लिश्ड ऑन 2nd October 1958. This is the date. Option 2 is the right answer. ICR IIRR is located at. This is answer is Hyderabad, Telangana. Next question is lysimeter is used for the measurement of evapotranspiration. Next question is indifference curves are मतलब कि indifference curve मतलब the curve will be this तरह curve the curve will be convex. Next question is self-determined learning is known as pedagogy. ICL launched PCMake National Agriculture Research and Education System Cloud Infrastructure and Service in 2020, and given below the two statements, T. Geo Ujjain is responsible for dwarfness in rice. This is also true, and fruit of rice is also known as caryopsis. This is also true. मतलब कि both the statements 1 and 2 are true. Insect responsible for flared square system in cotton, that is spotted bollworm. Next question, as per Government of India data, all India production of milk for 2019-20 is 198.4 million tons, and as per the Government of India data, this is true. As per the Government of India data, the all India production of egg for 2019-20 is 103.3 million tons. This is not correct. So statement 1 is true and statement 2 is false. Option 1 is the correct answer. Botanical name of emmer wheat, it is Triticum dicoccum. Next question, first transgenic plant was developed in tobacco. World Food Day. World Food Day is 16th October. World Soil Day it is 5th December. World Pulses Day is 10th February. And International Day for Biological Diversity, it is 22 May, 22nd May. And World Water Day is by 22nd March. This is the answer. So 1 का E मतलब कि 2 is the right answer. Option 2 is the right answer. Next question is any C program must contain at least one function. Which of the following language is case sensitive? Case sensitive language is C is a case sensitive language. Next question is CD-ROM stands for compact disk read only memory. Compact disk read only memory. So option 4 is right answer. Next question is a computer cannot boot if it does not have the operating system. Next question is ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. American Standard. Option 3 is the right answer. DOS stands for Disk Operating System. Next question is which of the following is not a binary number? 1, 2 is not a binary number. Binary number 0 और 1 हो सकता है. Addition of binary numbers 1, 1 and 0, 1 gives the binary number 1, 1 and 0, 1. What will happen? So 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0.
देन फिर से 1, तो 1 1 0 0, मतलब binary number will be 1 0 0. Next question is LAN stands for local area network. Next question is Internet Explorer is a browser. BLAST stands for basic local alignment sequence tool. Basic local alignment sequence tool. Option P is the right answer. Next question is National Center for Biotechnology Information, USA में है ये. Next question is the yield of paddy from 10 different fields are this the model value. Model value मतलब कि the value which is maximum number, मतलब कि 7.1 है, 7.1 है, 3 है, 3 times 7.1 है, तो 7.1 is the model value. Which of the following has no units? Coefficient of variation is no units. CV में कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि CV is the standard deviation by mean into 100%, तो इसमें कोई यूनिट नहीं होता. X follows binomial distribution with parameter, then mean of the random variable X, तो NP है mean of the random variable X. क्या होगा? मीन होगा NP, मतलब 10 into 0.2, मतलब होगा 2. आंसर will be 2. So option P is the right answer. Next question is X follows normal distribution with mean this, variance this. Sample mean X based on large sample of 100 observations follows normal distribution with parameters. With parameters क्या होगा? parameters 36,000 divided by 100 होगा, ये तो variance होगा, 100 observation से, तो mean है 50. Mean है 50 and variance is this. So क्या होगा? ये होगा 36, मतलब आंसर विल बी ऑप्शन 3 is the right answer. Next question is y follows chi-square distribution with 16 degrees of freedom, then mean of y is n, that is 16, मतलब 16 ही होगा. variance होगा 2n, मतलब 32 होगा. variance होगा 2n, मतलब 32 होगा. 32 होगा. Next question is the difference a minus b between two sets a b is equals to a minus b, मतलब है a intersection b complement. So a intersection b complement, option 2 is the right answer. Next 31 question is type 2 error in testing of hypothesis refers to it is the probability of accepting H0 when it is false. This is type 2 error is the most serious error. Two independent sample t-test statistics based on sample size 15 and 18 with equal population variance follows. 15 plus 18, 15 plus 18 क्या होगा? 33 होगा. 33 minus 2, so 31. P distribution is 31 degrees of freedom. Next question is the range of correlation coefficient -1 to +1. Next question, simple linear regression, beta 0, y is equals to beta 0 plus beta 1x. Beta 0 is this is the regression line, and it is beta 0. Beta 0 is the intercept, and beta 1 is the slope. This is beta 1 and this is beta 0. So beta 1 is the beta 1 is the slope. Beta 1 is slope and beta 0 is intercept, मतलब option 2 is the right answer. The procedure of decomposing overall variation in observed responses in experiment into different components attributable to various sources of variation is known as analysis of variance, या फिर एनोवा. इसको ही एनोवा बोलते हैं. एनोवा का फुल फॉर्म है एनोवा, analysis of variance. Y is a random variable with variance is 9 and variance of gy minus 9, तो क्या होगा? 9 into 9, तो 81 होगा. Next question is
Randomization is design experiments ensures randomization क्या करते हैं to ensure errors are independent. Which of the following designs is or are advocated with experimental units are homogeneous? Homogeneous होगा तो CRT होगा. Number of grains per panicle is a discrete variable क्योंकि ये पॉइंट में नहीं हो सकता. The variance of sample mean of sample size n from a population with capital N units under simple random sampling without replacement क्या होगा 1 by without replacement का फॉर्मूला क्या है स्क्वायर इज इक्वल्स स्क्वायर डिवाइड बाय n स्मॉल n डिवाइड ये होगा स्क्वायर डिवाइड बाय n कैपिटल N माइनस स्मॉल n divided by capital N. This is the simple random sampling without replacement. तो ये कौन सा है ये तो स्क्वायर है ये टर्म n माइनस n divided by n तो ये दोनों ही आंसर होगा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2. 41 क्वेश्चन है which of the following random variable is always non negative. का स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव क्योंकि ये स्क्वायर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. Probability of type 2 error of a statistical test is 0.2, then power of a test 1 minus beta, मतलब 1 minus 0.2, that is power of the test will be 0.8. Next question is in simple bar diagram, the height of the bars are proportional to the value of the attributes. Next question, standard deviation this is two constant values, तो standard deviation will be 0, variance 0 है इसलिए standard deviation भी 0 होगा. Which is always true. Summation x I minus x bar is always true. Is equals to 0 is always true. X y follows normal distribution with mean this and variance this. The standard normal distribution y minus 4 divided by 4. Option 3 is the right answer. To test h0 is equals to mu is equals to 0 and h1 that such that mu not equals to 0 when the population variance is known. Which of the following test is used? When the population variance is known, that means z-test is used. Testing h0 mu is equal to 0 and mu greater than is equal to 0 मतलब कि 0 से ज़्यादा है 0 से ज़्यादा है तो राइट टेल टेस्ट होगा. ये 0 है तो 0 से ज़्यादा है तो राइट टेल टेस्ट होगा. Next question is given the below the two statements the harmonic mean of n number is the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the numbers. ठीक है. Geometric mean is the arithmetic mean of the harmonic mean and arithmetic mean. This is not true. So statement 1 is true but statement 2 is false. Option 1 is right answer. The average of 7 numbers is 9. The missing number is 7 plus 9 plus 12 plus x plus 5 plus 4 plus 11 divided by 7. What this is equals to 9. Then x will be x का वैल्यू होगा 15. Option 4 is the right answer. Next question 51. X is a Poisson variate with probability x equals 3 is equals to probability x equals to 4. Then probability x not equals to 0 क्या होगा? तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन. Question number 51 का सॉल्यूशन probability of x is equals to 3 is equals to probability of x is equals to 4. Then क्या होगा? x is equals to 3 मतलब e to the minus lambda to the power x divided by 3 factorial. तो e to the minus lambda to the power x by x 4 factorial. यहाँ से लैम्डा मिल गया तो x not equals to 0 मिल जाएगा. x not equals to 0 मतलब 1 minus probability of x is equals to 0. तो 1 minus e to the power minus 4. It will be the answer. So option 2 is the right answer. The variance of this is 10 and 10 is variance of this number is इस नंबर क्या होगा. तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला पता है तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं. मीन इज n into n plus 1 by 2 तो 11 by 2 मीन. वेरिएंस इज xi minus x bar
का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कैलकुलेट करके वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस स्क्वायर इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, ये फॉर्मूला है। इसके बाद लास्ट में आंसर आया 99/12, 99/12 आंसर आया। उसके बाद क्वेश्चन है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज गिवन बाय Q3 minus Q1/2, option 2 is the right answer. A number is chosen randomly from each of the following sets: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Find the probability that sum of the two numbers is 6. 1, 5 हो सकता है, 2, 2, 4 हो सकता है, एंड 3, 3 हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी है, तीनों पॉसिबिलिटी है। यार फर्स्ट नंबर में 7 है और सेकंड नंबर में है 6 है, तो 3/2 मतलब 1/14 is the answer. Next question is, a group consists of 9 students from three disciplines. Out of 9 students, 4 are from statistics, 3 from economics, and 2 from chemistry. 3 students are selected randomly. What is the probability that out of the selected students, 2 are from statistics? 9 में से हमने 4, 9 में से हमने तीनों सेलेक्ट, 9 में से हमने तीनों सेलेक्ट किया, और 4 में से 2 स्टैटिस्टिक्स का है, बाकी है बाकी चीज सब इसका आंसर होगा 5/14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/14 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A problem statistics given to 3 students A, B, C whose chance of solving it are 1/2, 3/4 and 1/4 respectively. What is the probability that the problem will be solved if all of them tried independently? Tried independently tried करेगा तो probability of A, B, C होगा, probability of A into probability of B into probability of C होगा, हमको पता है। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तीनों इंडिपेंडेंटली करेगा, तीनों एक साथ करेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तीनों एक साथ करेगा तो प्रोबेबिलिटी होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 इंटू 3/4 इंटू 1/4। तीनों एक साथ करेगा तो प्रोबेबिलिटी होगा 3/32, तीनों अलग से करेगा तो प्रोबेबिलिटी होगा 29/32, 1 माइनस 3/32। दिस इज द आंसर जब तीनों लोग इंडिपेंडेंटली अप्लाई करेगा। Next question is, two means are compared using t-test to assess the statistical significance of the difference between two samples. Size of the first sample is 17 and size of the second sample is 13. How many degrees of freedom are associated with the critical t value? 13 plus 17 minus 2 plus 28 होगा आंसर। Binomial, which of the following probability mass function is impossible? Probability mass function is impossible। और दिस स्टेटमेंट ही गलत है ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस एंड मीन सेम होता है, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। बायोमोल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस कभी भी सेम नहीं होता, मीन हमेशा वेरिएंस से ज्यादा होता है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। फॉर इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, दिस इज द आंसर, ऑप्शन 2 is the right answer. In testing the hypothesis, whether the critical region is one-sided or two-sided depends on alternate hypotheses. Even below are two statements. Probability of rejecting null hypothesis when it is true is known as level of significance. Probability of rejecting null hypothesis when it is true, it's known as level of significance. Is it true? And probability of rejecting null hypothesis when it is false or alternate hypothesis is known as power of a test. So these दोनों, पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो बोथ 1 and 2 is true. Next question is, which test will be used in order to see whether the observed phenotypic segregation ratio in F1 generation is 3:1 or not when
टू हैबिट्स आर कॉस्ट ट्रस्ट। सो आंसर होगा काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट टेस्ट करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। 62 टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट x बार y बार में, मतलब दोनों का मीन में इंटरसेक्ट करता है। The coefficient of correlation between two variables is 0.6. Their covariance is 4.8. 4.8. Sorry, mistake. 4.8 divided by 0. Sorry, 0.6 is the correlation, and standard deviation of x is 3, and standard deviation of y is have to determine. So 4.8 divided by 3 into 0.6, option 1 is the right answer. Next question is, for in binary distribution, probability of success P will be symmetric if P is equals to half. X follows binary distribution with parameters n is equals to 10 and half. Expectation of this is expectation of x minus 5 का whole square. तो यहाँ पे मीन हम देख सकते हैं कि 5 है, तो दिस इज वेरिएंस। तो 10 इंटू 1.1/2 इंटू 1/2 मतलब होगा वेरिएंस होगा एन पी क्यू, एन पी क्यू। तो होगा 5/2 मतलब 2.5 होगा आंसर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। Variance of x are independent Poisson variate with mean is this, and then variance of x क्या होगा 10 प्लस 4 इंटू variance of y क्या है 5, 20 प्लस 20 प्लस 10 is equal to 30। 30 will be the answer, क्योंकि माइनस 2 कोवेरियंस तो 0 होता है ना, कोवेरियंस 0 है क्योंकि x and y इंडिपेंडेंट है, तो दिस टाइम इज 0। So option is 3. Next question is, for normal distribution all the central movement exist. ऑर्डर सेंट्रल मूवमेंट हमको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 0 होता है। ऑर्डर सेंट्रल मूवमेंट एग्जिस्ट तो करता है, तो ये 2 है। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज 4/5 सिग्मा, क्वाड्रेटिक डेविएशन 2/3 सिग्मा, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा। तो इसका रेशियो करेंगे तो 5 15 12 होगा, पहला वाला 12 होगा, तो 2 is false, मतलब 1 is true but 2 is false। ये completely randomized design CRT है। 6 ट्रीटमेंट का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 5, रेप्लिकेटेड 3 टाइम्स, तो टोटल है 18-1, मतलब 17 है। तो एरोड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा, एरोड का क्या होगा 12 होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दिस इज टोटल। तो 12 is the answer, मतलब 5,12। Option A is the right answer. The number of possible sample size n out of n population units in simple random sampling without replacement. With replacement, without replacement मतलब capital N CN is the right answer, option 2. Next question is probability. So 70 number question, that is probability of A given B is less than is equals to probability of A, then probability of B given A क्या होगा। probability of A given B को हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या होगा equals to probability of B given A into probability of A divided by probability of B। तो ये लेस देन इक्वल्स टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन विल बी लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 71 number question, in case of completely randomized design which of the following statement is false। So, in case of completely randomized design which of the statement is false। Say it is flexible design in the sense of that any treatment can have any number of applications, this is also true, and it is true CRT provides least degrees of freedom to estimate experimental error
एंड प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सीआरडी, ये ठीक है। सीआरडी इज मेन एप्लीकेबल फॉर लैब स्पेन, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज गलत हुआ, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 72 ही देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 72 में है द पेयर ऑफ वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग टू करेक्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट इन केस ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो हमको ये देखना है कि, एक मिनट स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ तो देखने में अच्छा होता है। तो टू पेयर ऑफ वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग टू करेक्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट इन केस ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होगा? द आंसर विल बी 4/3 कोमा 1/2, मतलब एक होगा 4/3 एंड एक होगा 1/2। मतलब एक एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, और कोई एक नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये दोनों नहीं होगा, 3 या फिर 1/2 होगा। तो 3 तो नहीं होगा क्योंकि 3 कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं हो सकता। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का रेंज -1 to 1 होता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? द फॉल्स स्टेटमेंट इज 0, अच्छा लेस देन इक्वल्स टू है, मगर यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन 2 इज द फॉल्स, मतलब ऑप्शन 2 इज द आंसर। तो 0 लेस देन इक्वल्स टू ए, तो हम 0 से मल्टीप्लाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा, एंड ए लेस देन इक्वल्स टू बी है। तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर लेस देन टू बी स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर 20 से छोटा है, एंड यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो होगा ए बी लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो 20 से छोटा है, मतलब कितना छोटा है ये हमको पता नहीं चल रहा है। तो ऑप्शन 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन दैट इज फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ x द कॉम्प्लेक्स नंबर cos x plus i sin 2x and sin x plus i sin I cos 2x are conjugate of each other। इसका वैल्यू क्या होगा? कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होगा, मतलब कि जब cos x इज इक्वल टू sin x होगा एंड जब sin 2x इज इक्वल टू cos 2x होगा तब ये कॉन्जुगेट होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कि 74 नंबर क्वेश्चन, 74 74 number question that is suppose this is cos x is equal to sin x, मतलब tan x is equal to 1, तो x is equal to pi by 4 and sin 2x is equal to cos 2x। यहाँ से 2x का वैल्यू आया x is equal to pi/8 एंड यहाँ से वैल्यू आया x is equal to pi/4। तो आंसर विल बी, दोनों वैल्यू हो सकता है। तो x will be no values of x, sorry, हाँ x will be no values of x। next question is the cubic equation 4x³ plus 3x² plus 2x plus 1 हैज, इसका क्या रूट होगा? तो इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर देते हैं। 4x³ plus 3x² plus 2x plus 1, तो 12x² plus 6x plus 2 एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको 0 करेंगे तो क्या होगा वैल्यू? इसका आप डेरिवेटिव करते हैं तो 6x² डेरिवेटिव नहीं करेंगे तो 2 कॉमन लेके काट देता हूँ, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देता हूँ। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका हम जब करेंगे कि d इज ऑलवेज ग्रेटर लेस देन टू, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि d का वैल्यू क्या है? तो √b² - 4ac, मतलब कि 9 - 4 इंटू 6 इंटू 1, तो 24, 9 - 24, तो ये d वैल्यू आ रहा है नेगेटिव। एंड इसका मतलब है कि एक रियल रूट है, बाकी सब अनरियल रूट है। एक रियल रूट और 2 अनरियल है, मतलब 2 अनरियल है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स है तो अनरियल है। तो ऑप्शन इज 1 रियल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर the modulus and arguments of the complex number this is given, and इसका हम z निकालेंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके बाहर करेंगे, उसके बाद आर्गुमेंट लेंगे। तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कि 76 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे आप देख रहे हो कि z is given, यहाँ से हम 2 कॉमन लेके 2⁴ बाहर निकल दिया, उसके बाद फिर से 2 कॉमन लिया, तो उसके बाद क्या हुआ? 2⁴ कॉमन लिया एंड इसके बाद 2 कॉमन लिया, उसके बाद
आई कॉमन लिया, तो आई कॉमन लिया हुआ तो आई डिवाइड बाई आई माइनस रूट थ्री आई स्क्वायर डिवाइड बाई आई। यहाँ से हम क्या करें, क्या, उसके बाद वन माइनस रूट थ्री आई टू दी पावर फोर, अब बाहर है टू टू दी पावर फोर, यहाँ से हम टू कॉमन लिया तो टू टू दी पावर एट, ये स्टेप नहीं होगा। तो इसके बाद ये तो जैसे टू टू दी पावर एट कॉमन लिया, उसके बाद वन बाई टू ऊपर कर दिया हमने, अपर साइड कर दिया, तो क्या हुआ आंसर, वन बाई टू टू दी पावर एट कॉस फोर पाई बाई थ्री एंड आई साइन फोर पाई बाई थ्री। यहाँ फोर से, फोर को यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, डिमोर्गन तो क्या लॉ था, क्या डिमोर्विस थ्योरम के अकॉर्डिंग, या फिर डिमोर्विस ही था, एक- तो डिमोर्विस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो हम फोर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर विल बी वन बाई टू टू द पावर एट प्लस कॉस फोर पाई बाई फाइव थ्री प्लस आई साइन फोर पाई बाई थ्री। तो आंसर विल बी वन बाई टू टू द पावर एट, आर्गुमेंट जेड विल बी फोर पाई बाई थ्री, फोर पाई बाई थ्री होगा आंसर, मतलब ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दैट इज 77, area of triangle whose vertices are iota, omega, omega square, then omega and omega square are not real cube of unity is क्या होगा, सपोज आयोटा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि एक ट्रायंगल है, उसका एक आई है, इसका ओमेगा है, मतलब वन प्लस रूट थ्री आई डिवाइड बाई टू है, और वन माइनस रूट थ्री आई डिवाइड बाई टू है। तो यहाँ से हम तीनों पॉइंट्स निकल गए, ये जीरो वन है, ये जीरो वन है, मतलब कि जीरो प्लस आई, तो तीनों पॉइंट निकल गया। उसके बाद तीनों पॉइंट निकल गया तो इसका एरिया जब क्या निकलेंगे, तो एरिया निकलना बोला है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा ये जीरो कॉमा वन है, तो जीरो वन यहाँ पे है, एंड वन प्लस थ्री वाई आई बाई टू, तो ये यहाँ होगा सपोज, एंड ये यहाँ होगा सपोज, तो इसका हमको निकलना है, तो ये इसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा, तो वन बाई टू इंटू डिस्टेंस क्या है, ये इसका डिस्टेंस क्या है, तो रूट थ्री बाई टू, वन बाई टू कॉमा रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू इज द डिस्टेंस, यहाँ पे रूट थ्री बाई टू इंटू हाफ, तो आंसर विल बी रूट थ्री बाई फोर, रूट थ्री बाई फोर, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 78 number question, that is out of 60 children in a colony, it is found that 25 like cricket, 26 like football, and 26 like badminton. 9 like both cricket, badminton. 11 like both cricket, football, and 8 like both football and badminton. 8 children did not like any of the three sports. मतलब 8 है n, ए बार बी बार सी बार है, n ए बार सी बार ए बार बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है 8। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, बड़ा बहुत बड़ा होगा, या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में लिखना थोड़ा क्रिटिकल है, देख लेते हैं। 78th नंबर क्वेश्चन, इन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है 8, एंड ए यूनियन बी यूनियन सी होगा 60 माइनस 8, तो 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी। तो यहाँ से हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी निकलना है, तो बाकी सबका वैल्यू है, ए बी सी का वैल्यू आया 3, तो 3 स्टूडेंट्स और 3 लाइक्स ऑल द 3 स्पोर्ट्स, मतलब आंसर ही वही होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट चिल्ड्रंस who like three all the three sports, मतलब 3, option 2 is the right answer। Two vectors are given, two vectors are in R3, then then which of the following is true, mu1 is given, mu2 is given, the two vectors are given, so क्या होगा 1 2, एंड इसको x ले लेते हैं, एंड माइनस 2 2, इसको हम y ले लेते हैं, एंड 7 3 एंड z करेंगे,
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम रैंक को डिक्रीज करेंगे। तो रैंक को डिक्रीज करेंगे तो देख के लग रहा है कि ये दोनों तीनों इसे basis of spaceman V2 V1 V2. So option 4 is the right answer. Question number 80, that is rank of matrix. रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद इस पॉइंट को 0 0 करेंगे, मतलब कि इसको हम ऐसे करना है 0 0 0। बाकी टर्म कुछ भी हो सकता है, बाकी टर्म यहाँ पे 2 होगा, सपोज 3 -1, या फिर कुछ एक पॉइंट आया, कुछ एक वैल्यू आया, यहाँ पे कुछ एक वैल्यू आया, यहाँ पे कुछ एक वैल्यू आया। जब यहाँ पे 0 होगा तब इसका रैंक हो जाएगा 2। अब जब इसका इसका कोई सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू आया, सपोज यहाँ पे 4 आया, या फिर कोई रैंडम वैल्यू आया, तो ये रैंक होगा 3। पता चला? तो इस इक्वेशन का रैंक होगा, यहाँ पे 0 आता है। तो हम देख लेते हैं कि सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स इज गिवन एंड R2 ऑपरेशन क्या है, R2 इक्वल्स टू R2 प्लस 4R1, R2 इक्वल्स टू 4R2 4 इंटू R2 प्लस 4R1, सॉरी R2 प्लस 4R1, मतलब कि यह 0 हो गया, ये 0 कर दिया। उसके बाद ये जैसे कि ये एक रो कम्प्लीटली 0 आया तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बी 2। मगर दो लाइन कम्प्लीटली 0 आता तो 0 आता तो रैंक होता 1। पता चल गया? तो क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इन रेंज इज गिवन। तो रेंज इज गिवन the real roots of, मतलब कि sin square x minus cos square x is equals to 0. So sin square x minus cos square x is equals to 0. cos square x is equals to 0। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, sin square x minus cos सॉरी यहाँ पे बहुत बड़ा कैलकुलेशन किया। हम डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं कि sin square x minus cos square x is equals to 0। तो sin x plus cos x into sin x minus cos x, तो is equals to 0, तो tan x is equals to -1 and tan x is equals to 1। तो two distinct real roots can be found, मतलब 81 का क्वेश्चन का आंसर होगा 2, मतलब 3 is the right answer। 82, let x is equals to this be the adjoint of a 3 by 3 matrix a, let determine a is 6, then the value of a क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, यहाँ से 3 को इसको हम डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू 6, मतलब डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 6 करेंगे, यहाँ से ए को निकालेंगे। तो 82 नंबर क्वेश्चन, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू किया तो 3a माइनस 3 माइनस ए इंटू 2 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से आया ए का वैल्यू 18/5। 18/5 इज द राइट आंसर। 18/5, तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है, तो ये दिस इज द रॉन्ग आंसर, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत हुआ। तो 83 नंबर क्वेश्चन, दैट इज ये है दिस इस, मतलब कि ये आई प्लस जे, आई प्लस ये आई है -2i प्लस जे -9i प्लस 2k -9i प्लस 2j 5i -6j। तो x 0 का मतलब ये है। तो इसमें क्या डायमेंशन है, इससे इट इज 2 डायमेंशनल, मतलब 1 -2 प्लस i -2i प्लस j, ऐसे करके। तो 2 डायमेंशनल है। दिस इज द आइगन वेक्टर, दिस इज द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स दिस। तो यहाँ ये क्या करेंगे हम, ये करेंगे हम लैम्डा इंटू वी वेक्टर करेंगे, लैम्डा वी वेक्टर, मतलब ये वी वेक्टर है इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। 84 नंबर, यहाँ पे देख सकते हो कि लैम्डा वी वेक्टर मतलब लैम्डा -2 लैम्डा लैम्डा, और ये ए वेक्टर है, ए मैट्रिक्स है एंड वी वेक्टर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आया -2। तो ऑप्शन -2 is the right answer, option 4 is the right answer। 85 number question, the sequence is given by this
ए वन इज गिवन, ए एन प्लस वन इज गिवन, तो यहाँ से एन को वन करेंगे तो क्या होगा, एन को टू करेंगे तो क्या होगा, इसको हम सीरीज में लिखेंगे, मतलब ए टू क्या होगा देखते हैं। ए टू करेंगे तो ए टू करेंगे टू माइनस वन बाई ए वन, वन बाई ए वन मतलब थ्री बाई टू, ऐसे करके सीरीज में लिखेंगे तो क्या, सीरीज में लिखेंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो इसको सीरीज में लिखेंगे तो थ्री बाई टू होगा, फोर बाई थ्री होगा, फाइव बाई फोर होगा, डॉट 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 करके एन प्लस वन बाई डिवाइड बाई एन होगा। तो ये क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन प्लस वन बाई एन। तो ये क्या, ये जब इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी का वैल्यू हो जाएगा वन, तो इट इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इट इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, मोनोटोनिक एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मैक्सिमम वैल्यू इज, ओके ओके, तो ये कन्वर्जेंस टू वन हो जाएगा। तो ये बाउंडेड तो हो, बाउंडेड तो है, बाउंडेड मतलब कि मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू दो है, मिनिमम वैल्यू थ्री बाई टू है, सॉरी, मिनिमम वैल्यू है थ्री बाई टू एंड मैक्सिमम वैल्यू है, एन जब जीरो करेंगे, सॉरी एन बच एन जब, मैक्सिमम वैल्यू है वन, नो मैक्सिमम वैल्यू है थ्री बाई टू एंड मिनिमम वैल्यू है वन। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बाउंडेड एंड कन्वर्जेस टू वन, मतलब टू इज द राइट आंसर। 86 number question, that is series, this is given n, n to the power tth term is n is equal to 1 by log n। तो 1 by log n is क्या है, डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है। 1 by log इंफिनिटी का कोई वैल्यू नहीं होता, तो क्या होगा, इट इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। x to the power n divided by n plus 1, तो ये क्या है, इट इज ए, it will be convergent जब x less than is equals to 1 होगा, and it is divergent जब x is greater than is equals to 1 होगा। Next question, 88 number question, that is the equation of straight line which passes through the point minus 1 comma 2 such that the part of the lines 2x is divided normally by the point p in the ratio। हम ये देखेंगे कि माइनस वन कॉमा टू किस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है। तो हम चार इक्वेशन में माइनस वन बाई टू बैठा देंगे, तो किस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है वो देखेंगे। तो देख के हमको देखते हैं क्या आंसर है। तो 88 नंबर का क्वेश्चन क्या आंसर है देखते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। थ्री को बैठाएंगे तो जीरो होगा, बाकी किसी में जीरो नहीं होगा। ऐसा एक इजी प्रोसेस है। The equation of second degree, these represent two mutually perpendicular straight lines। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस मतलब कि वो फॉर्मूला था ना, tan theta is equals to, tan theta is equals to 2 root a square minus ab, a square minus ab divided by a plus b। इस फॉर्मूला में हम ए बी एच का वैल्यू बिठाएंगे, तो यहाँ से हमको tan theta is equals to 1 by infinity, सॉरी tan theta is equals to tan perpendicular मतलब tan 90 मतलब कि 1 बाई tan 90 मतलब इंफिनिटी मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो ए प्लस बी मतलब स्क्वायर प्लस स्क्वायर मतलब टू माइनस पी इक्वल्स टू जीरो, मतलब पी का वैल्यू दो है, पी का वैल्यू दो, ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दिस एंड दिस क्या होगा। इसको सेंटर निकालेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे, उसके बाद डिस्टेंस चेक करेंगे एंड इसका रेडियस निकालेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो 99 90 क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देख लो। एक्स स्क्वायर, इसका सेंटर निकाला 3,7 और इसका सेंटर निकला 3,0 एंड इसका रेडियस है 3 एंड इसका रेडियस है रूट 10। तो C1 C2 इन दोनों सेंटर का डिस्टेंस देख लिया कि 7 है एंड R1 प्लस R2 निकाला तो क्या हुआ, R1 प्लस R2 निकाला तो क्या हुआ 3 प्लस रूट 10। जैसे कि हमको C1 C2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R1 प्लस R2, मतलब दोनों का सेंटर का डिस्टेंस R1 प्लस R2 से ज़्यादा है, मतलब कि जिस तरह ग्राफ होगा तो फोर कॉमन टेंजेंट्स कैन बी फॉर्म, मतलब एक यहाँ से फॉर्म हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है,
एक ऐसे हो सकता है। तो फोर्थ नंबर ऑफ टाइम कॉमन टेंजेंट्स क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, एक ऐसे हुआ, एक ऐसे हो सकता है, एंड एक ऐसा हो सकता है। कॉमन टेंजेंट्स मतलब चारों को, दोनों को ही टच करेगा, तो ये फोर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। The equation of normal to the parabola this which passes through the point 9,6 क्या होगा? 9,6 प्रोसेस थ्रू द 9.6 मतलब 9.6 इस चारों इक्वेशन में बैठा देंगे, इसका 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 चारों इक्वेशन में बैठा देंगे, तो जिस इक्वेशन को सॉल्व करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं इसका, या फिर सबको बिठा बिठा के चेक करना पड़ेगा। 91 91 का बैठा बैठा के देखा तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, मतलब कि 4 सेटिस्फाई कर रहा है। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 92 नंबर है, दिस इज लाइन टचेस द एलिप्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे एक कंडीशन है कि सपोज दिस इज द एलिप्स इक्वेशन, यहाँ पे हम h के पॉइंट पे टच कर रहे हैं, सपोज ले लेते हैं। तो एच एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर एच वाई डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, उसके साथ इस स्ट्रेट लाइन का सॉल्व करेंगे तो फिर एच को की का वैल्यू क्यू के का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद एच को के का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा। तो शायद 92 नंबर क्वेश्चन है ना, 92 नंबर क्वेश्चन है। ओ या फिर ये भी सो देखो, इसको ये थोड़ा क्रिटिकल है, तो ये याद रखना पड़ता है, छोड़ दो इसको। देखो, the line touches the ellipse at the point h, k, suppose then h, k इसको भी पास करेगा एंड इसको भी पास करेगा, इसको भी पास करेगा, इसको मतलब टू को ही पास करेगा, दो को भी पास करेगा। तो इसको इक्वेशन लिखा दिया, लिख दिया, दिस इज वन इक्वेशन एंड दिस इज अनदर इक्वेशन। देन टू इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके h का वैल्यू आ जाएगा, एच का पी का वैल्यू आ गया, वो वैल्यू हम यहाँ पे बैठा देंगे, दो नंबर इक्वेशन में बैठा देंगे, तो इक्वेशन आ जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आंसर विल बी ए स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 93 number question is given that consider the hyperbola this x by cos square theta plus minus y square by sin square theta is equals to 1 if theta changes which following remain constant। मतलब suppose this is the equation, suppose this is the parabola, this is the hyperbola, so यहाँ पे फोकस है f1 f2 is equals to 2a, तो जब a एंड b चेंज करेंगे तो फोकस विल भी चेंज, फोकस चेंज होगा ना। फोकस तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो 2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि फोकस कांस्टेंट रहेगा। 93 नंबर फोकस विल बी कांस्टेंट। Next question is 94. F of x is equals to 2 to the power 1 by x. तो 2 to the power 1 by x, इस इक्वेशन को हम y ले लेंगे, log लेंगे, उसके बाद log y is equals to 1 by x log 2 को बाहर आ जाएगा, 1 by x is equals to मतलब कि 1 by 0 that does not define, मतलब कि f of x does not exist। देख लेते हैं एक बार चेक करके। 94th नंबर, 94th नंबर है y इक्वल्स टू f of x, इस log ले लिया, उसके बाद टू की पावर x किया तो log ले लिया, तो log लिया तो log 2 बाहर आ जाएगा, तो log x हुआ log 1 by x, तो 1 x इक्वल्स टू 0 करेंगे तो इंफिनिटी आ जाएगा, तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x टू द sin x, तो इसको हम log ले लेंगे तो sin x log x हो जाएगा। sin x log x को हम इजीली डेरिवेटिव कर सकते हैं, sin log x मतलब कि sin x इंटू लॉग एक्स, यूवी में डेरिवेटिव होगा, यूवी में डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है log y इक्वल्स टू sin x log x, यूवी में डेरिवेटिव किया तो यूवी में डेरिवेटिव करने के बाद 1 by y dy dx होगा, y यहाँ पे मल्टीप्लाइड हुआ, y इस ये y है,
तो y मल्टीप्लाई हुआ इंटू साइन एक्स बाई लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x एंड लॉग एक्स कांस्टेंट साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो x टू द पावर sin x by x plus log x into cos x to the power sin x by x cos x into log x. This is the answer. Option 4 is the right answer. Expansion of the f of x is equal to log 1 plus x. क्या होगा इसका इक्वेशन? log 1 plus x का इक्वेशन शायद होगा, सॉरी log 1 plus x का इक्वेशन नहीं है। तो log 1 plus x होता है कि 1 minus x plus x square by 2 minus x cube by 2. Option C is the right answer. 97. The curvature of the circle of radius a क्या होगा? 1/a होगा. L is a called horizontal to asymptote. Then the graph of the function if क्या होगा? Limit extends to plus infinity is equals to L, and if limit extends to minus infinity f of x is equals to L. जब होगा तब horizontal asymptote of the curve, इसको हम ay is equals to L is called is the horizontal asymptote of the curve of the function f of x, इसको बोलते हैं। तो 99th नंबर क्वेश्चन इज वाई जेड इज गिवन, डी जेड डी एक्स निकलना है। यहाँ पे वाई कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, एक्स टू द पावर 4 क्यू भी करेंगे, 0/0 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। 99th नंबर क्वेश्चन देख लो आंसर। यहाँ पे डी जेड डी एक्स करेंगे, उसके बाद यू भी किया, यू भी करके 0/0 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये एक्स 0 हो जाएगा तो 0 इज आंसर। 0 is answer. Option 2 is right answer. Next question is the equation of f of x comma is equals to c. Defines y implicitly as differentiable function of x, and if df by dy is not equals to 0, then dy by dx is क्या होगा? dy by dx सेम रहेगा, तो माइनस ये है इसका आंसर। इसको हम ये हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमें समटाइम्स एग्जाम में आ सकता है, तो ये एक फॉर्मूला भी है, हमको याद रखना होगा। देन 101 क्वेश्चन क्या है, यहाँ दिस इज द इक्वेशन टू डी जेड बाई डी एक्स निकलना है। यहाँ से हम जेड को अलग करेंगे, जेड को अलग करके जस्ट सिंपल डेरिवेटिव कर देंगे। तो जेड को कैसे अलग करेंगे, और सिर्फ डेरिवेटिव कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, सिर्फ सिंपल डेरिवेटिव कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा देखते हैं। सिंपल डेरिवेटिव कर दिया है, y कांस्टेंट डी जेड डी एक्स माइनस लॉग एक्स लॉग जेड का 1/z डी जेड डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 डी जेड बाई डी एक्स निकलना था तो y कांस्टेंट तो 1 होगा, y का डेरिवेटिव 0 है। तो यहाँ से डी जेड डी एक्स क्या है, z डिवाइड बाई वाई जेड माइनस 1, सो एक का आंसर वाई जेड डिवाइड बाई 1 वाई जेड माइनस 1, इट इज द आंसर ऑप्शन 4। 102 इज द जैकोबियन फंक्शन दिया है, u v का जैकोबियन है विद रिस्पेक्ट टू x एंड v। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x का वैल्यू है z इक्वल्स टू दिस, x इक्वल्स टू t टू द पावर 4, y इक्वल्स टू t स्क्वायर, देन dz dt क्या होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे, y का वैल्यू बैठाएंगे, उसके बाद dz dt निकालेंगे। 103 का आंसर आएगा, x का वैल्यू यहाँ पे बैठाया, y का वैल्यू बिठाया, उसके बाद dz dt निकालेंगे तो 42 tq आंसर आएगा। 42 tq आंसर आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू द पावर 50 इंटू 2x dx, इसको हम क्या कर सकते हैं, डी ऑफ टोटल को हम क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लेते हैं, तो ये पार्शियल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 51/51 मतलब ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 105 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ साइन एक्स लिख सकते हैं, डी ऑफ साइन एक्स लिख सकते हैं। तो डी एक्स डी जेड बाई जेड स्क्वायर मतलब -1/z, मतलब क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको भी हम सेम कर सकते हैं, 1/2 करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका लिमिट है 0 to 2, तो इसका वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर 4/4, तो एक्स टू 4 + 1 5 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 3 मतलब कि 125 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, तो 124/8, 124/8 मतलब कि सॉरी 5 टू दी पावर 4 होगा, स्क्वायर है ना, तो 2 टू दी पावर 2, इसका सॉरी मिस्टेक हुआ, ये नहीं होगा, क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 2 दी पावर 4 मतलब कि कुछ 4 मतलब 4, 4 + 1 5, 5 टू दी पावर 4 माइनस 1 टू दी पावर 4, तो क्या होगा 6 to 4 डिवाइड बाई 8, तो होगा 78 आंसर, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 107 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले देखा था, एक्स को अंदर करेंगे या फिर वाई को अंदर करेंगे, रेंज में बैठाएंगे, रेंज करेंगे आंसर आ जाएगा, तो आंसर देख लेते हैं कैसा किया है, कैसे हुआ है। 107 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कैसे हुआ, ये देख लो, मैंने पहले एक्स को अंदर किया, वाई को जैसा था वैसा ही है, -3 to 2, इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर लिया, इसका फर्स्ट का इंटीग्रेशन करने के बाद बस इस पार्ट को इंटीग्रेशन करने के बाद बाहर निकल रही है, बाहर निकलने के बाद बाकी पार्ट का इंटीग्रेशन हुआ लिमिट 0 to 1 तक, तो आंसर आया -5/6, -5/6 आंसर ऑप्शन 2। एक स्मार्ट नंबर क्वेश्चन, और दिस इज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में भी बोला था कि बीटा n प्लस n, तो इसका आंसर विल बी, इससे फॉर्मूला है ये, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आई डी एक्स गिवन, वाई 0 क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद एक्स का वैल्यू 0 बैठाएंगे, वाई का वैल्यू 7 बैठाएंगे, तो क्या होगा, मतलब वाई, ओ अच्छा अच्छा वो तो बोल दिया, यू आई डी एक्स सिंपल 6 वाई वाई इक्वल्स टू -6 एक्स डी एक्स -2 × 2 एक्स स्क्वायर, तो e to the power -3x square, e to the power -3x square, 7 into e to the power -6, sorry -6 नहीं -3x square, 3x square प्लस ये का इसी काम को करके log c ले लेते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 110 का क्वेश्चन क्या होगा, एग्जैक्ट कोई इक्वेशन जब एग्जैक्ट होगा मतलब कि dm/dy इक्वल्स टू dn/dx, dm/dy इक्वल्स टू dn/dx होगा, मतलब ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। जनरल इक्वेशन ऑफ दिस गिवन में क्या होगा, m स्क्वायर माइनस m -6 इक्वल्स टू 0, इसका m1 होगा, इसका 2 रूट्स होगा, एक m1 एंड एक m2, तो m1 into m square -3 plus 2 -3 and plus 2, y समान a मतलब कि c1 e to the power -3x plus c2 e to the power 2x, तो कौन सा है,
माइनस 3x 2x माइनस 3x 2x माइनस 3x 2x माइनस 3x 2x इक्वल टू 1 का। वो अच्छा अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गया। तो n का वैल्यू होगा इक्वल 0 है ना, तो n का वैल्यू होगा 3, n का वैल्यू होगा 3 या फिर -2 होगा, मतलब 3 पॉजिटिव होगा और 2 नेगेटिव होगा। तो +3 -2 +3 -2 मतलब ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 112 नंबर क्वेश्चन दिस इज गिवन। तो ग्रेटर देन टू 0 तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। dy बाई वाई इज k dt, तो log y इज इक्वल्स टू kt प्लस log x प्लस log c, तो log y x by c इक्वल्स 1 c into e to the power kt। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 113 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिस इज गिवन। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये थोड़ा बड़ा होगा, इसका हम t dx को d लिखेंगे एंड d2 by dx2 को हम d स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद हम इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे, तो क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। वो आंसर जो आंसर आएगा वही पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, 113 measure 13 का that is this is given। d2 by d to d स्क्वायर ले लिया, d स्क्वायर प्लस 3d माइनस प्लस 4 इंटू y कर दिया, तो 3x प्लस 2 3x प्लस 2, तो इस y को इधर ले गया तो x डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 4, यहाँ से हम 4 कॉमन लिया तो 4 कॉमन लिया 1 प्लस 3d बाई 4 प्लस डी स्क्वायर बाई 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d बाई 4 टू दी पावर -1 लिख सकते हैं इंटू 3x प्लस 2। तो इसको हम 1 माइनस डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस 3d बाई 4 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्मूला को हम मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद d मतलब dy बाई डी एक्स हमारा डी डी एक्स ऑफ 3x क्या होगा 3 होगा, डी डी एक्स ऑफ 2 कांस्टेंट क्या होगा 0 होगा, डी डी एक्स ऑफ एक तो डी टू है मतलब डबल ए भी होगा, मतलब पूरा टर्म 0 हो जाएगा। डी एक्स पे डी मतलब 9/4 होगा, ये पूरा टर्म 9/4 होगा, -9/4 3x प्लस 2 -9/4, तो आंसर आया यहाँ से 3x/4 3x/4 -1/16। तो आंसर देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल का 3x/4 -1/16, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 114 नंबर क्वेश्चन, 114 नंबर क्वेश्चन दैट इज डिवाइड इज dx equals to px into y plus qx into y to the power n। दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बार्नोलिस डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमको याद रखना, ये लॉ है। तो बार्नोलिस डिस्ट्रीब्यूशन, बार्नोलिस इक्वेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो 114 हो गया, 115 सॉरी 115 यहाँ से 115 है डेल्टा ए बी टू दी पावर एक्स, मतलब कि फॉरवर्ड डिफरेंस ए बी टू दी पावर एक्स, फॉरवर्ड डिफरेंस इनटू ए बी टू दी पावर एक्स। फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स। एक मिनट टाइम ले लेता हूँ। तो डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब है ए बी टू दी पावर एक्स प्लस एच माइनस ए बी टू दी पावर एक्स, तो यहाँ से कॉमन लेंगे ए बी टू दी पावर एक्स कॉमन लेंगे, तो एच -1 सॉरी एच -1 नहीं होगा, बी टू दी पावर एच -1, और एच क्या बोला है, एच बोला है यूनिट मतलब एच इक्वल्स टू 1 बोला है, तो ए बी टू दी पावर एक्स
into b to the power h divided by b minus 1. तो a to the power h b minus 1, ऑप्शन 1 is the right answer. 116 नंबर क्वेश्चन क्या है, which of the following method is the following न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कौन मेथड सबसे अच्छा होता है? तो इट इज so which of the following is a method for numerical integration? तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करने के लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा होता है? बाइसेक्शन मेथड, ट्रापेजॉइडल रूल, इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को करने के लिए ट्रापेजॉइडल रूल इज द बेस्ट, ट्रापेजॉइडल रूल यूज करते हैं। Which of the following is a method to solve simple non-linear equations by numerical method? So it is Newton-Raphson method, मतलब कि फॉर्मूला था xn plus 1 is equals to xn xn minus f dash x f of x divided by f dash x f dash x. This is the Newton-Raphson method का फॉर्मूला है और the value of this given by, तो क्या होगा 10a minus 1 to the power 9 minus 1 मतलब 9 तो minus 10 आंसर, minus 10 will be the answer. Option 4 is right answer. Option 4 is right answer. 119 number question. The f is a function which twice differentiable at x is equal to c and is twice differentiable at x is equal to c and f dash c is equal to 0. If double dash is equal to greater than or equal to 0 मतलब ही है इट इज, मतलब कि x is equal to c में ये क्या होगा, ये मैक्सिमम है, मतलब सॉरी पॉजिटिव है मतलब मिनिमम वैल्यू शो करेगा, मतलब कि एफ एस मिनिमम एट एक्स इज टू सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए कॉमा बी एंड कॉन्टिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी, मतलब कि क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, then there is at least one c in a b such that f of c is equal to f b minus f a divided by b minus a. This statement is mean value theorem और या फिर इसको लैग्रेंज थ्योरम भी बोलते हैं। तो लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं लैग्रेंज लैग्रेंज थ्योरम भी बोलते हैं, थ्योरम भी बोलते हैं।